Hello everyone, how are you all? I hope you are good and learning well. So, in this video, we'll be starting with chapter number 8 Fire and Fire, which is friend and foe. What is the meaning of foe? Foe, you can write down dangerous enemy. Foe means dangerous enemy. So, in this video we'll be studying about fire. Yes, fire. So fire अपन डेली लाइफ में कितनी बार देखते हैं. वी यूज़ इट इन आर डेली लाइफ, यू कैन से डेली रूटीन, बट वी नेवर थॉट ऑफ, कभी आपने सोचा कि फायर कैसे आई है, ये कैसे बर्न अप होती है. ओके, so in this video we'll be seeing that what is actually fire, how it you can say who invented it, how did we discover it, and how do we control it. Why do we need to control fire? Sometimes fire get out of control. Okay, reasons how it get out of control and how do we control it back. So we'll be studying in this chapter. So it is a very interesting and informative chapter. Let's see how. Let's begin with the first paragraph. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. So now writer talks about the time when the man didn't knew that what is actually fire is. Sometimes we have seen in some movies कि अर्ली जो मैन थे, मीन्स यू कैन से नो मैन्स, तो वहाँ पे क्या, अगर वो फायर को देखते थे तो उनके लिए फायर क्या थी, सम लाइट दैट इज ऑफ ऑरेंज एंड येलो कलर, एंड एज सून एज यू ट्राई टू टच इट यू फील बर्न्ड इन अर्ली मैन. ठीक है, अभी अपन को आइडिया है, अभी अपन के पास नॉलेज है. सो इन अर्ली स्टेजेस देर वॉज नथिंग. अभी जैसे बुक से अपन को पता चल जाता है हु इन्वेंटेड इट, व्हाट एक्चुअली फायर इज़, क्या यूज़ है, क्या हार्मफुल यूजेस हैं, ठीक है, और कैसे हार्म कर सकती है. बट इन अर्ली स्टेजेस पीपल डिडंट न्यू व्हाट फायर इज़. तो बेसिकली बस उनको इतना पता है कि वो क्या, जो डैमेज जो फायर कॉज करती है, सो उनको बस उतना आइडिया है. एंड इवन उनको सिर्फ फायर से वो कैसे, यू कैन से, अपन को पता है कि डिफरेंस बिटवीन फायर, लाइटनिंग एंड वोल्केनोस. अर्लियर इन मैन कि इनको आइडिया नहीं था, तो सिर्फ उन्होंने देखा था लाइटनिंग मीन्स बिजली, वोल्केनोस यू नो. तो यहाँ पे क्या, फायर का उन्होंने, ऑफ कोर्स जो वोल्केनोस है उसमें से भी हीट एंड फायर निकलती. इवन लाइटनिंग इज ऑल्सो you can say kind of fire that produce heat, that lightning cause damage. So इतना उनको क्लियर था. they were afraid. frightened means here, frightened means afraid, scared, or in Hindi you can say डर. So early men were afraid of fire because they know it is powerful and dangerous also. Next paragraph. Fire may have puzzled early man, but we know that the fire is the result of a chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. So in this paragraph we see what is the process of generating fire. If you ask to someone, ठीक है, कोई क्वेश्चन पुट अप करता है कि हाउ डू फायर यू कैन से बर्नड अप, एंड हाउ कैन यू से कि फायर किस चीज़ का रिजल्ट होती है, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फायर, एनीथिंग. ठीक है, तो नाउ यू हैव आंसर दैट it is result of a chemical reaction
what chemical reaction? When oxygen in the air, okay, we also takes inhale oxygen. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, this chemical reaction takes place, और जो एनर्जी बनती है वो फॉर्म करती है, फॉर्म मीन्स मेड है, वो मेड और या फिर यू कैन से वो हीट को बनाती है. एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू सी फायर देयर इज ऑल्सो लाइट. सो फायर एंड लाइट इज द आउटकम ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. बट इन अर्ली मैन उनको ये केमिकल रिएक्शन पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ ऑक्सीजन, व्हाट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज़ फ्यूल. बट now we have an idea how the heat is formed, but early men were puzzled means confused. early men were confused कि ये एकदम से, अगर आप कोई भी स्टोरी देख सकते हैं, you can write down cartoon of seeing fire or getting shocked when they see fire, you can easily get the videos. तो वो ऐसे रिएक्शन देते थे कि what is happening, ये एकदम से कैसे हुआ. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. 3 things are needed to make fire, that is fuel, oxygen and heat. So what are the 3 things we need to make fire, to form fire? तो इन अगर फायर कहाँ पे, यू कैन से कि फायर कहाँ पे लगेगी, जहाँ पे फ्यूल होगा, ऑक्सीजन होगी एंड हीट होगा. हीट मीन्स गर्माहट. So there is difference between heat and fire. Let's continue. Wood, coal, cooking gas and petrol are some example of fuel. तो fuel क्या चीज़ें होती हैं? Wood, coal means कोयला, cooking gas, स्पेशली कुकिंग गैस अलग होती है. ओके, एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. मीन्स अगर मुझे फायर बर्न करनी है, ओके, फॉर्म करनी है, तो मुझे इन सारे फ्यूल्स में से, और भी फ्यूल्स होते हैं, सबसे पहले मुझे फ्यूल चाहिए. अगर आपने देखा है कि इन विंटर्स वी बर्न वुड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक वुड, देन वी पुट सम हीट एज अ मैच स्टिक कि उसको गर्म करने के लिए, एंड ऑक्सीजन वो आपको सराउंडिंग्स में मिलती है. देन ओनली यू कैन से फायर इज फॉर्म्ड. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, दैट इज वाई when you blow on smoldering paper it often bursts into flame. So what is smoldering? Burning slowly with flame. अगर आपने कभी नोटिस करा, एक पेपर है, अगर आप उसको बर्न करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें पहले एकदम से फ्लेम आएगी, बट जब वो फ्लेम बुझ जाएगी तब भी आप उसके एजेस पे, मीन्स हेयर, अगर ये पेपर है तो उसके आप एजेस पे फायर देखोगे, मीन्स वो अपने आप धीरे धीरे बर्न हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एयर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मैच स्टिक से उसको पहले जो जलाया था उससे तो फ्लेम आई, बट इवन विदाउट you can say giving it heat, it also burn itself with the help of oxygen. Let's continue. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire themselves. So fuel and oxygen अपने आप में नहीं बनाएंगे फायर, they also need oxygen. You can say heat. हीट मीन्स कुछ गर्म करने के लिए उसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए ही है. मीन्स इन 3 थिंग्स में से कोई एक चीज़ मिसिंग हुई, वहाँ पे फायर वुड बी ऑल्सो मिसिंग. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, और एल्स न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑफ इट्स ओन. मीन्स एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर अपन को जैसे हीट अगर मैं कट ऑफ कर दूं, अगर सिर्फ बात हो रही है किसी फ्यूल की, तो वो क्या कह रहे हैं, न्यूज़पेपर बिकॉज वी नो कि पेपर्स भी वुड की हेल्प से ही बनते हैं. एंड स्टिक मीन्स वुडन स्टिक अगर कहीं ओपन में पड़ी हो तो वो अपने आप फायर, लिखा है वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, अपने आप नहीं वो फायर कैच करेगी. इट विल नीड अ हेल्प ऑफ हीट टू बर्न. लेट्स कंटिन्यू. To burn a piece of paper or wood,
we need heat it before it catches fire. We generally do it with the lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called flash point or kindling temperature of the fuel. So here match means matchstick. Now writer is telling us that if we want to burn the paper or wood, we need to know that it should catch fire. And how would it catch fire? when जो उसका हीटिंग पॉइंट है वो अपन उस फ्यूल का एंड हीटिंग पॉइंट मैच करा सके. कैसे? एवरी फ्यूल में चाहे आप कह लो पेपर, अगेन कोल, वुड, एनीथिंग हैज़ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मीन्स उसका एक पॉइंट होता है. अगर उसको मैं हीटअप करूँगी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से पेपर विल बर्न क्विकली एज कम्पेयर टू वुड. कि मैंने एक पेपर लिया, मैच स्टिक ली, पेपर एकदम से जल गया. बट इफ़ आई एम बर्निंग वुड, तो वुड को टाइम लगेगा बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग पॉइंट. व्हाट इज फ्लैश एंड किंडलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर यू कैन मार्क हियर, टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न. इट मीन्स कोई भी फ्यूल को अगर जहाँ पे भी उसका बर्निंग पॉइंट है, जैसे आपने साइंस में सुना होगा बॉइलिंग पॉइंट, सिमिलरली फायर में क्या है? फ्लैश और किंडलिंग टेम्परेचर. नेक्स्ट पैराग्राफ. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट द फायर इज़ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. We know that it is a common saying कि fire क्या है? एक good servant भी है but एक bad master है. So ये एक phrase है. इस phrase का क्या meaning है? So till here it is a phrase and ये क्या है उसका meaning? कि this means that the fire is very useful as long as it is under control, and when it is out of control it can harm it very badly. Useful, अपन फायर को कैसे यूजफुल कहते हैं? ऑफ कोर्स फायर इज यूजफुल, वी गेट लाइट. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी सी हाउ राइटर इज एक्सप्लेनिंग दैट फायर इज यूजफुल एंड व्हेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल हाउ इट विल हार्म. लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हियर. फॉर इंस्टेंस we use it to cook our food, warm our house in the winter and to generate electricity. So this is uses or benefits of fire. We use to cook our food, it is keep our homes warm or body also warm in winters. It will also help us to generate electricity. Generate means टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अपन को अगर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करना है, समटाइम्स वी यूज़ फायर ऑल्सो. नाउ व्हाट आर द हार्म इफेक्ट्स ऑफ फायर फ्रॉम हियर? बट ऑन द अदर हैंड, इफ द फायर गेट आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर. Vast areas of forest also destroyed and hundreds of people are just killed or injured. So now we see fire when get out of control means जब फायर को जो आसपास के लोग हैं कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर अगर जैसे एक पेपर देखोगे, पेपर जलेगा और अपने आप बुझ जाएगा. बट कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि फायर को और बर्न करने में हेल्प करते हैं. वो कंट्रोल नहीं हो पाती फायर. उसका क्या रीज़न होता है कि इट माइट बी गेट ऑफ ऑक्सीजन, माइट बी लॉट्स ऑफ हीट इज़ ऑल्सो देयर, कि वो फायर कंट्रोल में नहीं आ रही. नाउ वी सी कि समटाइम्स होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर. हाउ? शॉप्स की कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे भी फायर, जैसे मैंने आपको लाइटनिंग कहा, वैसे ही शॉर्ट सर्किट. और इवन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी अपन ने फर्स्ट सेकंड लाइन में देखा कि इट इज़ हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो कभी जब शॉर्ट सर्किट होता है देयर इज़ ऑल्सो फायर. फायर इज सराउंडेड बाय द वॉल, माइट बी क्लोथ्स, तो फिर वो बर्नट अप हो जाते हैं. एंड इन होम समटाइम वी सी कि सिलेंडर बस्ट आउट हो जाते हैं, या इन दिवाली
जनरली अपन न्यूज़ ये दिवाली में सुनते हैं कि उन्होंने दिए जलाए एंड समहाउ होम गेट कॉट बाय फायर। एंड नाउ ये तो हो गई अपन की रेसिडेंशियल और शॉप्स की बात। समटाइम्स फॉरेस्ट ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड एंड उसकी वजह से काफ़ी एनिमल्स को भी हार्म होता है एंड जो उसके आसपास जो लोग रह रहे होते हैं वो भी उनको भी हार्म होता है। एंड दिस फॉरेस्ट फायर को अपन क्या कह सकते हैं? हियर यू कैन से बुश फायर फॉरेस्ट। ओके, कैसे? तो उसको आप बुश फायर करके आप इजीली गूगल कर सकते हैं कि व्हाट इज़ बुश फायर। कि समटाइम्स काफ़ी जगहों में इतनी हीट हो जाती है ड्यू टू सन। एक तो फॉरेस्ट में लोगों ने या तो जला दिया होता है, उसको स्लैश एंड बर्न कह सकते हैं। एंड सम टाइम इटसेल्फ सन की वजह से इतनी हीट अप हो जाती है। सो इफ आई से फॉरेस्ट में फ्यूल है, फ्यूल कौन सा? वुड है। ऑक्सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है एंड हीट कहाँ से मिलती है उस फॉरेस्ट को? बाय द सन। तो सन इतनी जब बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है तो माइट भी जो वुड्स हैं उसका जो अपन की किंडलिंग पॉइंट है या फ्लैश पॉइंट है वो पहुंच जाता है एंड देन ट्रीज गॉट फायर, बुशेस गॉट इनटू फायर एंड होल फॉरेस्ट गॉट बर्न्ड। ऐसे अपन न्यूज़ सुनते, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ। जस्ट एज 3 things are needed to start fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. In each one of the 3 things needed for burning is taken away. Now we are getting information कि जैसे कि अपन ने फायर में देखा कि फायर को बर्न करने में या फायर को गेट इन करने में 3 things की ज़रूरत है, वैसे ही अगर अपन को फायर को पुट आउट मीन्स रोकना है या पुट आउट मीन्स टू सेंड इट आउट, बट फायर को अपन बाहर नहीं भेज सकते। इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेज कि पुट आउट मीन्स उसको स्टॉप करना है या उसको वहाँ पे जलने से रोकना है। तो सिमिलरली वी नीड 3 things दैट कैन बी नीडेड। सो लेट्स सी व्हाट आर दैट 3 things दैट कैन कंट्रोल फायर। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, for example, we can take away the fuel. If fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let fire die out simply by not adding more fuel. So what is the meaning of here fuel to feed on? Here जैसे अपन कहते हैं we feed our children, right? तो वैसे ही फायर को क्या है, उसकी फीड रोकनी है। कैसे? उसका फ्यूल हटा के। सो फायर जैसे वी फीड ऑन डिफरेंट फ्रूट, वेजिटेबल, वाटर, सो इट इज़ ईजी। आप इस तरीके से याद रख सकते हो फायर के लिए क्या फीड है। योर यू कैन से फूड क्या है? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो इसमें से अगर एक फीड अपन हटा देंगे फ्यूल, देन इट विल सिंपली डाई आउट मीन्स स्टॉप हो जाएगी। है डाई आउट सिंपली मीन्स अपने आप कम हो जाएगी अगर अपन और फ्यूल नहीं डालेंगे। फॉर अगेन लेट्स टेक एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। जब अगेन अपन वुड्स जलाते हैं टू कीप अस वार्म, तो अपन क्या करते हैं? अपन कहते हैं ना कि और लकड़ी डालो, देन और लकड़ी डालो। अगर मैं और उसमें लकड़ी नहीं डालूँगी देन फायर विल स्लोली बी swiped out means बंद हो जाएगी and or you can say die out. Let's see what is second thing from here. The second way of putting out fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. So here what is second thing कि अगर prevent means हटाना, to remove, तो वहाँ पे क्या करेंगे? अगर ऑक्सीजन को उस फायर तक नहीं पहुँचाएंगे, प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग मीन्स अगर ऑक्सीजन को हटा देंगे फायर तक पहुँचने के लिए, तब भी फायर वहाँ पे नहीं बर्न अप होगी या स्टार्ट नहीं होगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगेन यू कैन डू वन एक्सपेरिमेंट एट होम, लाइट अ कैंडल, ओके, एंड पुट वो तो जलेगी, बट व्हेन यू पुट अ ग्लास यू कैन सी ग्लास, ओके, जो ग्लास का जो होता है, अपन कांच का अगर आप ग्लास लोगे
तब उस कैंडल के ऊपर अगर आप डाल दोगे तो वो फ्लेम अपने आप बुझ जाएगी कैंडल की। ओके, बट डू दिस एक्सपेरिमेंट अंडर द सुपरविजन ओनली। आपको जो मैंने ये एक्सपेरिमेंट बताया है ये आप किसी मम्मी पापा के साथ या अपने किसी बड़े भाई बहन के साथ ही करोगे। यू डोंट हैव टू प्ले विद द फायर। ओके, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ। Small fire can be put out or smoothed with the damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. So here smoothed means suffocated. मीन्स अपन को फायर को सफोकेट करवाना है। जैसे ऑक्सीजन, आपको मैंने क्या कहा था, फीड, अपन को ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर मैं वो ऑक्सीजन रोक दूंगी फायर के लिए तो भी वो फायर बंद हो जाएगी। सिमिलरली उन्होंने कहा है कि जो स्मॉल फायर्स होती हैं वो कैसे बंद हो सकती हैं या सफोकेट मीन्स अगेन जब वो कब बंद हो सकती है, जब अपन उनके ऊपर डैम्प ब्लैंकेट या सैक लगाएं। डैम्प हियर मीन्स जो लिटिल वेट जो ब्लैंकेट होता है या सैक, यू कैन से बोरी। कहीं पे भी अगर आप फायर देखोगे, जस्ट पुट ब्लैंकेट और सैक ऑन इट, उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वहाँ तक, उस फायर तक पहुँच नहीं पाएगी। अपन एक बैरियर बनवा देंगे फायर और ऑक्सीजन के बीच में। कैसे, उसके ऊपर एक डैम ब्लैंकेट और सैक रख के। समटाइम्स इट इज सेड कि दिस विल stops the oxygen to the burning material and carbon dioxide again another, you can say oxygen कौन सी आ गई, carbon dioxide gas is also used to extinguish fire. Again extinguish means to stop fire, बुझाने के लिए अपन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का जो गैस है वो भी यूज़ करते हैं to stop the oxygen for reaching the burning material. Last, the third way of putting out fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. थर्ड क्या है, जो उसका फ्लैश पॉइंट है, बर्निंग पॉइंट जो है वो उस मटेरियल का या किसी एरिया का अगर अपन ड्रॉप डाउन कर देंगे देन ऑल्सो फायर विल स्टॉप और रिमूव्ड। अगेन हाउ दैट, जो अपन को क्या चाहिए था, टेम्परेचर मीन्स हीट। यू कैन राइट डाउन हेयर टेम्परेचर मीन्स हीट, कि जब अपन आसपास के जो हीट है, ओके, चाहे वो किसी मटेरियल का हो चाहे किसी फ्यूल का एरिया, तो उसका जो टेम्परेचर है और हीट है, मैं अगर उसको बिलो द फ्लैश पॉइंट ले आऊँगी मीन्स उसको ठंडा करूँगी उसके आसपास के एरिया को, तब भी फायर रुक जाएगी। Let's continue. You blow on burning matchstick or a candle to put it out. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर कम होता है, कि जब अपन कैंडल्स बर्न करते हैं या मैच स्टिक बर्न करते हैं, अगर अपन उसको बंद करना है तो क्या करते हैं, अपन ब्लो करते हैं मीन्स फूंक मारते हैं। उससे क्या होता है, जो आसपास का जितनी भी गर्माहट है अराउंड द कैंडल, अराउंड द मैच स्टिक, वो अपन की ब्लो से, फूंक से कम हो जाती है एंड इट स्टॉप बर्निंग। लेट कंटिन्यू। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर। यू कैन मार्क डाउन कि रिमूव द हॉट एयर कब, जब अपन उसका बिलो द फ्लैश पॉइंट उसको लेके आएंगे या उसका टेम्परेचर नीचे गिरा देंगे। ओके, यू कैन मार्क इन योर टेक्स्ट बुक। Flame bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out. Candle goes out means वो जो burn up हो रही है वो बंद हो जाएगी। Sometimes water is sprayed on fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. ये तो आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा कि कहीं पे भी अगर आग होती है अपन क्या पानी डाल देते हैं, अगेन वो क्या करता है, टेम्परेचर जो हीट है उसको लो कर देता है, लोअर द टेम्परेचर। The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and fire is extinguished. अगेन सेम एग्जाम्पल कि अगर ब्लैंकेट को अगर अपन किसी बर्निंग मटेरियल पे डाल देंगे तो वो क्या कर देता है, कट ऑफ मीन्स रोक देता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को।
Some fires cannot be put out with water. If it is sprayed onto an oil and fire, the oil will float to the top of the water and continues to burn. So now writer is telling us, told us that 3 ways of stopping that fire, but there are some also ways, you can say these are some are the ways we should not do when the fire is burning. So we end this video here. In the next video we will be seeing that what writer is telling us, जहाँ पे उसने पहले कहा है कि वाटर डाल दो, ठीक है, कि टू स्टॉप द फायर, बट नाउ इन दिस पैराग्राफ, इन दिस 3 लाइन्स, नाउ द राइटर इज सेइंग कि काफ़ी टाइम वाटर हेल्प नहीं करता. व्हाट आर द रीज़न? एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट, देर आर सम ऑल्सो वेज कि जहाँ पे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं फायर को एंड उसके डैमेज को. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो दैट हाउ डू वी ऑल्सो प्रिवेंट फायर विथ मोर डिफरेंट वेज इन मॉडर्न वेज. जैसे अर्ली एज में तो उनके पास आइडिया नहीं था, बट व्हाट आइडियाज मॉडर्न पीपल नो टू स्टॉप द फायर. Thank you so much again. Stay safe.